آپ کسی کو بھی اسٹریس میں دیکھ لو, اگر وہ اچھی نیند کرتا ہے نیکسٹ ڈے اس کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ ایک دن پہلے لڑائی ہوئی تھی یا پریشانی تھی. ہی ہیز ناؤ اے اسکوپ آف اسٹارٹنگ ہز ڈے نیو. میں نے جیسے کہا جنک فوڈ, پروسیسڈ فوڈ, ساری بیکری آئٹمس, سارے آئس کریمس, یہ اور کوئی بھی ٹن میں ہے جس میں ہم لوگ کافی پریزرویٹیوز یوز کرتے ہیں, یہ سارا مضر, مطلب اٹس ناٹ ہیلدی فار. اینگزائٹی ہوتی ہے انپریڈکٹیبلٹی اور فیئر, جہاں آپ کو وسوسہ ہو, ڈر ہو, یہ ایک الگ موضوع ہے. پہلے تو ہم لوگ یہ سمجھ لیں کہ مینٹل ہیلتھ از سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو سوشل, فزیولوجیکل اینڈ ایموشنل ویل بینگ. آپ اگر ٹائم پہ سو گے, ٹائم پہ اٹھو گے, دس از گوئنگ ٹو چینج یور لائف, اور آپ کو کوئی اسٹریس نہیں ہوگا جب آپ مارننگ میں اٹھو گے. 2 hours بفور سلیپ اٹ از امپورٹنٹ کہ ہم لوگ اپنے موبائل اور گیجٹس آف کریں. بچوں کے لیے, چھوٹے بچوں کے لیے تو 1 گھنٹے سے زیادہ ریکمنڈیشن نہیں ہے, اور جو 10 سال سے کم بچے ہیں ان کے میکسیمم 3 سے 4 گھنٹے کی ریکمنڈیشن ہے, آپ یوز کر سکتے ہیں. بٹ جتنا ہو سکے, کیونکہ اب کلاسز وغیرہ سب اسی پہ ہوتی ہیں, جتنا ہو سکے اس کو ڈسپلن کریں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر آسیہ نبی. ڈاکٹر آسیہ دبئی UAE کے پرائم ہیلتھ میں بطور اسسٹنٹ میڈیکل ڈائریکٹر اور میڈیکل پریکٹیشنر کے طور کام کر رہی ہے. خوش آمدید ہے آپ کا. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحبہ, سب سے پہلے جاننا چاہوں گا کہ جس طرح وادی کشمیر میں نفسیاتی تکالیف میں اضافہ ہو رہا ہے, کیا دیگر جگہوں پر بھی اسی طرح کا رجحان دیکھنے کو مل رہا ہے؟ یہ بہت اچھا کویشچن ہے جو آپ نے, جس سے ہم نے پروگرام کو شروعات کی ہے. دیکھیے ورلڈ وائڈ اگر WHO کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں تو ان کا کہنا یہ ہے, اور ان کی سروے یہ کہتی ہیں کہ لائف ٹائم میں 1 in 4 از افیکٹڈ ود مینٹل ہیلتھ. تو یہ بہت بڑا نمبر ہے. اس کا مطلب کہ 4 لوگوں میں سے 1 انسان ڈیورنگ ہز لائف ٹائم اور ہر لائف ٹائم افیکٹ ہو سکتا ہے. تو اس حساب سے یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو ہم لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. تو جسمانی صحت, جب ہم ذہنی صحت کی بات کرتے ہیں, مختلف کس طرح ہے؟ فزیکل ہیلتھ, جسمانی صحت اور مینٹل ہیلتھ, یہ دونوں بہت امپورٹنٹ ہیں. لیکن عام طور کی زندگی میں اور جو پچھلی ہمارا جو ریکارڈ رہا ہے, ہم نے ہمیشہ فزیکل ہیلتھ کو امپورٹنس دی ہے. فزیکل ہیلتھ میں آپ کا, اگر میں لوگوں کی ایزی طریقے سے سمجھنے کی بات کروں کہ آپ کا فوڈ ہیبٹس کیا ہے, آپ کتنا ایکٹیو ہو, ہر ایج کے حساب سے آپ کی موومنٹ کیا ہے, آپ کا کارڈیو میٹابولک ہیلتھ کیسا ہے, آپ کا بلڈ پریشر, آپ کا بلڈ شوگر, آپ کی کولیسٹرول لیولز, یہ سب فزیکل ہیلتھ کے ایٹریبیوٹس آتے ہیں. لیکن مینٹل ہیلتھ جو ہے, جس پہ ہم نے زیادہ بات نہیں کی ہے, اور زیادہ تر ہم نے ڈپریشن کے حوالے سے بات کی ہے, کیونکہ یہ ٹاپک جو ہے آج جو ہم بات کر رہے ہیں وہ نہیں ہونے کے بارے میں بات کریں. تو پہلے تو ہم لوگ یہ سمجھ لیں کہ مینٹل ہیلتھ از سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو سوشل, فزیولوجیکل اینڈ ایموشنل ویل بینگ. سو اس میں آپ کا ایموشنز بھی آ گیا, اس میں آپ کا فزیولوجیکل ویل بینگ بھی آ گیا, اور سوشل ایسپیکٹ. آپ کس طریقے سے سمجھتے ہو, آپ کس طریقے سے بات کو انٹرپریٹ کرتے ہو, آپ کی کنسنٹریشن, آپ کی ایبلٹی ٹو پرفارم, چاہے آپ آفس جاب میں ہو, آپ کی کنسنٹریشن, آپ کس طریقے سے سچویشن ہینڈل کرتے ہو, آپ کی پرسنل ریلیشن, آپ کس طریقے سے گھر کا ماحول ہینڈل کرتے ہو, کیا آپ بہت زیادہ غصے میں ہو, کیا آپ کاملی بہیو کرتے ہو. دس آل کمز انڈر دی بلینکٹ آف مینٹل ہیلتھ. مینٹل ہیلتھ میں 4 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں, جس میں سے ہم آج, جیسے آپ نے کہا, لائف اسٹائل اور انوائرمنٹ پہ بات کریں گے. اس کے علاوہ جینیٹکس اور بایولوجی بھی امپورٹنٹ ہے مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے. اچھا, یہ بتائیے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ کو ہم اگنور کرتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ ایجوکیشن لوگوں میں زیادہ نہیں ہے, یا ہم زیادہ پریفرنس جسمانی صحت پر دیتے ہیں؟ لوگوں کے پاس انفارمیشن ہی نہیں ہے کہ ہمیں مینٹل ہیلتھ جیسی کوئی چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. یہ زیادہ ہم نے دیکھا ہے. اور ایک زیادہ فوکس رہتا ہے جسمانی صحت پر. لوگوں کے اندر ایک فوبیا ہے کہ اگر میں نے مینٹل ورڈ یوز کیا یا میں نے مینٹل ہیلتھ کے بارے میں کچھ بولا تو امیڈیٹلی لوگوں کا یہ ریئیکشن ہوگا کہ اس کو تو سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے. تھوڑا سا بھی پوسٹ کووڈ لوگوں میں اتنا ہو گیا ہے کہ ایٹ لیسٹ دے آر ریچنگ ٹو سائیکالوجسٹ, اور وہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے لگے ہیں. لیکن زیادہ تر فوبیا جو ہے کہ اگر ہم مینٹل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں, اس میں جو ریسٹرکشنز ہیں وہ گھر سے ہی شروع ہوتی ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہے بہت بڑا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, وادی کشمیر میں نفسیاتی تکالیف زیادہ دیکھنے میں اب آ رہے ہیں. آپ کی دانست میں کیا وجوہات ہیں جو یہ معاملات یا جو ذہنی مسائل
सामने आ रहे हैं वादी कश्मीर की ज़्यादा? आज मैं आप लोगों के साथ और आपके वसीले से लोगों के लिए बहुत 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटल हेल्थ शेयर करना चाहूँगी, और ये रिसर्च बेस्ड है और ऑथेंटिक है। अगर हम ये डेली मर्रा की ज़िंदगी में ये 7 चीज़ें चेंज कर लें तो इंशाल्लाह हम लोग काफ़ी चीज़ों में बेहतर हो सकते हैं। पहली बात कि हम लोग पानी पीने को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। ये इस पर बात करेंगे, मगर जो मैंने वजूहात गिनवाए, क्या वजूहात हो सकती है यहाँ जो मेंटल प्रॉब्लम बढ़ रही है? मैं आपको यही कह रही हूँ कि जो हमारा लाइफस्टाइल है जिसमें हम लोग गौर व फिक्र नहीं कर रहे हैं, हम किस तरीके से उठते हैं, हमारे सोने का तरीका क्या है, हम चीज़ों को किस तरीके से फेस करते हैं और रिएक्शन क्या देते हैं, फैमिली कैसे सपोर्ट करती है, और ख़ुद हमें क्या क्या समझने की ज़रूरत है, इस वजह से जो है ओवरऑल स्ट्रेस बहुत हो गया है। अच्छा, जो आप मानती हैं कि वजूहात ऐसे हैं जिस तरह से वादी कश्मीर में आप देख रहे हैं कि ये बढ़ रहा है? ये बढ़ रहा है। अच्छा, कौन सी ऐसी जिस्मानी और ख़ास कर अगर हम बात करें ऐसी कौन सी नफ्सियाती तकालीफ हैं जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ हमारे खाने पीने से या तर्ज ज़िंदगी से? जहाँ मैं वही कहने वाली थी कि 7 थिंग्स, और हम उस पर थोड़ा सा खुलासा करेंगे। पानी पीना, अच्छी नींद, हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में बोलेंगे, खाने पे, सनलाइट, एक्सरसाइज, रिलेशन पे भरोसा और डिवाइन पावर। ये 7 चीज़ें हैं जिसको हम लोग थोड़ा करके एक्सप्लेन करके जो लोगों को फ़ायदा देगी। सबसे पहली बात कि हमारा जो बॉडी है उसमें 60 to 70% रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर होती है, जिसमें से अगर मान लीजिए 1 ग्लास हमने पानी पिया, इसमें से 30-40% ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है पानी की अच्छा परफॉर्म करने के लिए। जब हम डिहाइड्रेटेड रहते हैं किसी भी वजह से, पानी नहीं पीते हैं या ज़्यादा यूरिनेशन होता है, तो ब्रेन भी डिहाइड्रेट हो जाता है, यानी कि आपका ब्रेन जो है उतना आउटपुट नहीं देता है जितना उसको देना चाहिए। तो इसका मतलब अगर जिस्म को पानी ज़रूरत है तो दिमाग को भी पानी की ज़रूरत है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये पहली बात है कि जो लोग इग्नोर करते हैं। अब जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और क्योंकि हम लोग ठंडे इलाके में रहते हैं, अभी तो गर्मी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ज़्यादातर 7-8 महीने ठंडी है, माहौल ठंडा है, तो लोगों का कॉन्सेप्ट नहीं है पानी पीने का। ऑन एन एवरेज जो रिकमेंडेशन है, जो गाइडलाइंस हैं, उसके हिसाब से किसी भी एडल्ट फीमेल को 2.8 लीटर पानी पीने की ज़रूरत है थ्रू आउट द डे, एंड मैन हैज़ टू ड्रिंक 3.2 लीटर्स पर डे, सो दैट वो जो ब्रेन फॉग है वो हट जाए। आप मान लीजिए किसी सिचुएशन में फंस गए और आपको कोई कैलकुलेशन करनी है, दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ये बच्चों के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे पानी नहीं पीते हैं, और स्पेशली यहाँ तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि हम लोग 1 ग्लास या 1 बॉटल से, अभी क्योंकि आई एम ऑन वेकेशन तो लोगों के यहाँ जाना आना होता है, पानी का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सो यू डोंट स्टार्ट योर थिंग्स विद वाटर। सो द मोर यू आर हाइड्रेटेड, तो आपकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आप में एनर्जी लेवल बहुत आ जाएगा, ब्रेन फॉग ख़त्म हो जाएगा, आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। आई एम श्योर कि इंशाल्लाह जो बच्चे मैथमेटिक्स में कमज़ोर हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा पानी पीना। अच्छा, तो दूसरा आपने कहा, दूसरी चीज़ फूड। हम सब जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली ईद का फेस्टिवल था, हमारा फूड पैटर्न सारा चेंज हो गया है। बहुत पुरानी कहावत है, वी आर व्हाट वी ईट। हम वही हैं जो हम खाते हैं। हम जंक खा रहे हैं, हम जंक सोच रहे हैं। बच्चों को, बड़ों को, सबको ये सोचने की ज़रूरत है कि ब्रेन की भी एक ग़िज़ा होती है, जैसे बॉडी की ग़िज़ा होती है, ब्रेन के लिए स्पेसिफिकली फूड रिच इन विटामिन्स, मिनरल्स और ओमेगा 3 की ज़रूरत है, और प्रोटीन्स की ज़रूरत है। ब्रेन गुड कोलेस्ट्रॉल पे डिपेंड है और ओमेगा 3 पे डिपेंड है। इसमें से मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ कॉन्शियसली हम लोग खा रहे हैं, कभी कभी खाते। तो इसमें अगर और मैं थोड़ा, क्योंकि फूड वाला पार्ट जो है अगर हम शुरू करेंगे तो शायद 2 दिन भी लग जाएंगे, लेकिन ओवरऑल कैसे इस चीज़ को इंटरप्रेट करें कि क्या सही है और क्या गलत है। हम इस चीज़ को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। हम बोलते हैं कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड, नेचुरल फूड, प्रोसेस्ड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड, ये एक 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। अब आप बोलोगे कि इसको कैसे एक्सप्लेन करें। हमारे पास एक भुट्टा है, ये नेचुरल फूड है, इसमें कोई केमिकल नहीं। हमने इसको काट के कैन में भर दिया तो ये प्रोसेस्ड हो गया, इसमें थोड़ा सा मिलावट आ गई, थोड़े से मिनरल्स बच गए, थोड़ी सी न्यूट्रिशन बच गई, और इसको हमने कॉर्नफ्लेक्स में डाला और
اور بھی चिप्स वगैरह में बनाए तो ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड है। भुट्टे में काफ़ी सारे फ़ायदे हैं और उसमें ज़ीरो न्यूट्रिशन है, कोई न्यूट्रिशन नहीं। तो जब बॉडी को, ब्रेन को ज़रूरत होती है, आप दिस इज़ द मेन रीज़न कि हमारी जो ये स्टेट हैं और ओवरऑल वर्ल्ड में डायबिटीज़ भी बढ़ रही है। वी विल नॉट डिविएट टू दैट टॉपिक, बट मेंटल हेल्थ के हवाले से इसमें कोई भी फूड ब्रेन को नहीं मिल रहा है। बट इफ़ यू ईट फिश, इफ़ यू ईट जो दूध है, विटामिन डी रिच फूड है, विटामिन B12 रिच फूड है, ओमेगा 3 स्पेसिफिकली हाईएस्ट क्वांटिटी फ्लैक्स सीड्स में पाई जाती हैं। अगर वो हम रेगुलरली अपने फूड में नेचुरल तरीके से भी, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप मल्टी वाइटामिन्स लो, मैं कह रही हूँ आप एटलीस्ट अपने फूड को एसेस करो। आपके बच्चों के टिफ़िन में क्या है, आप लंच में क्या ले रहे हो, नेचुरल जितना आप खाएंगे, अपने सामने जो बना हुआ आप जितना खाएंगे उतना आपका ब्रेन फ्रेश रहेगा, आपको स्ट्रेस नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि ग़िज़ा जो है काफ़ी अहमियत का हामिल है। अगर हम रिच प्रोटीन, रिच जो बाकी न्यूट्रिशन से भरपूर ग़िज़ा खाएंगे तो हमारा जिस्म ही नहीं बल्कि दिमाग भी सेहतमंद रहेगा। तो दूसरा आप कह रही थी कि दूसरी किस चीज़ पे आप ख़ास ध्यान देनी होगी? फूड में एक चीज़ और है, क्योंकि अभी रिसेंटली यहाँ प्रोसेस्ड फूड का और बेकरी का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट हो गया है। तो मैं लोगों को बता दूं कि जब भी हम शुगर कंजप्शन करते हैं, पहले तो शुगर में कोई न्यूट्रिशन नहीं होता, इट्स ओनली कार्बोहाइड्रेट। इससे कोई एनर्जी नहीं आती जो हमें लगता है कि चीनी खाने से एनर्जी आती है। इसमें पर्टिकुलरली हमारे बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, एक कॉर्टिसोल होता है। जब भी हम एक्स्ट्रा शुगर खाते हैं मोर देन रिकमेंडेड या ऑलरेडी बीमारियों में है, इसमें ये जो कॉर्टिसोल होता है अगर ये बढ़ गया, सडनली एंजाइटी लेवल भी बढ़ जाती है। अच्छा, तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लोगों को ये कहना है कि स्ट्रेस में, एंजाइटी में और डिप्रेशन में क्या फ़र्क है, क्योंकि आप किसी को भी देखेंगे वो ज़्यादातर स्ट्रेस वर्ड यूज़ करता है या टेंशन। स्ट्रेस का मतलब होता है अगर हम एक स्पेसिफिक वन लाइनर आंसर दे कि कोई भी काम अंडर प्रेशर करना, जो आमतौर की ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ अ गुड थिंग। आप टास्क जल्दी करते हो, स्कूल बस लेट हो गई, ऑफिस जल्दी पहुंचना है, ट्रैफिक हो गया, तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म में इफेक्ट कर सकता है अगर हम रोजमर्रा उसी लाइफ में गुजारें। एंजाइटी होती है अनप्रेडिक्टेबिलिटी और फेयर, जहां आपको वसवसा हो, डर हो, ये एक अलग मौजू है। और तीसरा डिप्रेशन, जो यकीनन बीमारी है और उसमें इलाज चाहिए। तो स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन, जो मैंने अभी तक चीज़ें बोली, आप उससे स्ट्रेस भी रिड्यूस कर सकते हो, आप उससे एंजाइटी भी रिड्यूस कर सकते हो। सो वी टॉक्ड अबाउट 2 थिंग्स। हमने फूड के बारे में बात की, वाटर के बारे में। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज स्लीप, रेस्ट। रेस्ट को हम लोग कोई वैल्यू नहीं देते हैं, राइट? अगर हम ईजी लैंग्वेज में उसको समझने की कोशिश करें, आपके पास गाड़ी है और आप रोज चाहते हो उसको मेंटेनेंस मिले, आपकी गाड़ी कैसी चलेगी? अच्छी, बहुत अच्छी। इसी तरीके से जो अल्लाह ताला का निज़ाम है या जिस तरीके से स्लीप को डिस्क्राइब किया गया है, आप अगर टाइम पे सोओगे, टाइम पे उठोगे, दिस इज़ गोइंग टू चेंज योर लाइफ। और आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगा जब आप मॉर्निंग में उठोगे। आप जो है, आप अच्छी नींद का मतलब ये नहीं होता है 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, जिसमें आप फ्रेश फील करो, वही आपका स्पेसिफिक टाइम है। तो होता क्या है, जनरली हमारी हार्ट बीट जो है वो 70 बीट्स पर मिनट है और लंग्स की जो रेट है वो 18-19 है। जब हम रेस्ट करते हैं, अच्छी नींद करते हैं, हार्ट को इतना रेस्ट मिल जाता है, वो 20-30 बीट्स पर मिनट चला जाता है और लंग्स जो है 10 बीट्स पर मिनट। एवरीथिंग इज़ रिजुवेनेटिंग, सारी सिस्टम चेंज होती है। तो अगर हम इसको भी इम्पोर्टेंस दें, आप किसी को भी स्ट्रेस में देख लो, अगर वो अच्छी नींद करता है, नेक्स्ट डे उसको याद भी नहीं होगा कि एक दिन पहले लड़ाई हुई थी या परेशानी थी। ही हैज़ नाउ ए स्कोप ऑफ स्टार्टिंग हिज डे न्यू। ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि कोई ऐसी ग़िज़ा है जो ज़हनी सेहत के लिए मुज़िर है? मैंने जैसे कहा, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, सारी बेकरी आइटम्स, सारे आइसक्रीम्स, ये और कोई भी टिन में है जिसमें हम लोग काफ़ी प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करते हैं, ये सारा मुज़िर, मतलब इट्स नॉट हेल्दी फॉर। जिस तरह मैंने आगाज़ में ही कहा कि न सिर्फ बड़े बल्कि बच्चे भी जो जूझ रहे हैं एंजाइटी, डिप्रेशन और चिड़चिड़ापन के वो शिकार पाए जाते हैं, हमें ये बताइए कि क्या उनके इस तकालीफ में खाने पीने का अमल दखल है या टेक्नोलॉजी का वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ख़ासकर अगर हम मोबाइल फ़ोन्स की बात करें? दोनों चीज़ें।
अगर हम बच्चों में देखें कुछ साल तक लाइक 8, 10, 9 साल तक ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, उनमें एक पर्टिकुलर एरिया है कि अगर उसमें जंक फूड ज़्यादा चला गया, देयर कंसंट्रेशन, उनकी कंसंट्रेशन पूरी ख़राब हो जाती है और वो बहुत एजिटेटेड हो जाते हैं, क्योंकि उनका सिस्टम वो डेवलप नहीं होता है जैसे एडल्ट्स में होता है। और टेक्नोलॉजी के हवाले से बिकॉज ये ब्लू लाइट है, ये डायरेक्ट ब्रेन को इफ़ेक्ट करती है और एजिटेट करती है। 2 आवर्स बिफोर स्लीप इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम लोग अपने मोबाइल और गैजेट्स ऑफ करें। बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए तो 1 घंटे से ज़्यादा रिकमेंडेशन नहीं है, और जो 10 साल से कम बच्चे हैं उनके मैक्सिमम 3 से 4 घंटे की रिकमेंडेशन है, आप यूज़ कर सकते हैं। बट जितना हो सके, क्योंकि अब क्लासेस वगैरह सब इसी पे होती हैं, जितना हो सके इसको डिसिप्लिन करें और जहाँ ज़रूरत है वहाँ यूज़ करें और बड़ा स्क्रीन यूज़ करें, दैट इज़ हेल्पफुल। मोबाइल तो बहुत क्लोज है, इट इज़ रियली चेंजिंग द माइंड स्टेट। कई इससे कोई बीमारियां वजूद में आ जाती हैं, जिस तरह से कमज़ोर हो जाता है ब्रेन, और दूसरी बात कि उनका जो सोचने का मादा है वो कम हो जाता है और मेमोरी भी लॉस हो जाती है। बिल्कुल, जैसे जितनी भी बातें हमने कही उसमें सबसे पहले ब्रेन फॉग, यानी कि आपको ब्रेन ही धुंधला हो गया, आप कोई कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे क्लियर, आपको जो बच्चों के लिए एक क्वेश्चन है ये आप समझ ही नहीं पाओगे, और पेरेंट्स वैसे ही परेशान कि हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है। आप ये प्लीज़ चेक करो कि आप अपने बच्चों को क्या देते हो, क्या आप उनको सही खाना दे रहे हो, बिकॉज हम लोग फास्ट वर्ल्ड में हैं और अनफॉर्चुनेटली जो नेचुरल चीज़ें हैं, और जैसे नॉर्मल खाना हो गया, दाल चावल हो गया, रोटी हो गई, जो ड्राई फ्रूट्स हो गए, और फिश है, मटन है, चिकन है, इसकी क्वांटिटी आप बढ़ाओ बच्चों में, एंड देन सी हाउ दे विल परफॉर्म, वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे। अच्छा, जिस्मानी सेहत के लिए दिमागी सेहतमंद होना कितना ज़रूरी है? पहले ज़माने में हम लोग जब सर्वे करते थे, हम लोग किसी को भी बोलते थे व्हाट इज़ सक्सेस फॉर यू, तो उनका आंसर होता था सैलरी एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। शायद अभी भी लोग यही यूज़ करते हैं। अब जो है सक्सेस जो है वो है सैलरी, जॉब, रिलेशनशिप्स, ये सारी जो हैं ये 40% है, और 30% इज़ मेंटल हेल्थ, 30% इज़ फिजिकल हेल्थ। ये इतना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मेंटली फिट हो, you can do anything on this earth in a positive way. अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह हम बात कर रहे थे कि जिस्मानी सेहत के लिए दिमागी सेहत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमें ये बताइए कि आगे जाके इंसान, जिस तरह से आपने फूड की बात की, पानी ज़्यादा लेने की बात की, तर्ज ज़िंदगी में किस तरह का बदलाव लाना चाहिए ताकि जो हमारी जो बीमारियाँ पनप रही है उन पर काबू पाया जा सके, ख़ासकर दिमागी सेहत के ताल्लुक से? अगर हम रूटीन सेट करें, पहले तो जब मॉर्निंग में उठे खाली पेट पानी पीना बहुत ज़रूरी है, चाहे किसी भी तरीके हो, थोड़ा सा टाइम देना है उसमें, ताकि जो केमिकल्स हैं स्टमक में, इससे आपकी एसिडिटी भी रिड्यूस हो जाएगी और ब्रेन को सडनली न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा। जैसे मैंने कहा 60 to 70% ब्रेन रिक्वायर्स वाटर। उसके बाद अपना नाश्ता करें। अगर एसिडिटी के इश्यूज़ हैं तो मेरा सजेशन ये होगा कि पानी आधा 1 घंटा पहले पी ले, किसी भी खाने से पहले, और खाने के 2 घंटे तक भी पानी ना पिए, क्योंकि इसमें काफ़ी एंजाइम्स भी होते हैं जो एग्रीवेट होते हैं अगर हम पानी पीते हैं। जो भी ब्रेकफास्ट हो, ये सोचा समझा ब्रेकफास्ट हो, ये नहीं कि आप उसी दिन डिसाइड करो। जब आप ग्रॉसरी शॉपिंग करो हफ्ते की, आप बाकायदा बैठ के डिस्कस करो, बच्चों को ज़्यादा नॉलेज होती है, उनको इन्वॉल्व करो, आप सब इन्वॉल्व करो कि बजट के हिसाब से हम क्या चीज़ें ब्रेकफास्ट में अवेलेबल रख सकते हैं जो बच्चे खा सकते हैं लास्ट मिनट नहीं। हम वही चीज़ें फ्रिज में भी रखेंगे जो अवेलेबल होगी बच्चों के लिए। इसमें आपके नट्स आते हैं, आप सुबह उनको लाइक हेल्दी ब्रेकफास्ट में आप उनको ओट्स विद नट्स दे सकते हो, आप उनको फ्रूट्स दे सकते हो, आप उनको एग्स दे सकते हो, आप उनको मिल्क दे सकते हो। देन आप लंच की जब प्रिपरेशन करो, ये भी आप सोच समझ के करो कि मुझे कितना पोर्शन जो है राइस रखना है, विच शुड बी द लीस्ट, मैक्सिमम प्रोटीन होना चाहिए, और बाकी जो है सब्जियां और मटन या चिकन जो भी आप रखना चाह रहे हो, जितना जिसके हिसाब से हो, ये भी प्लानिंग। तो मेरे कहने का मतलब है आप जो भी खाओ ये आप रैंडमली मत खाओ, और बिना भूख लगे तो कुछ मत खाओ अगर भूख नहीं है तो। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस्मानी वर्जिश की कितनी अहमियत है और कितनी ज़रूरत है दिमागी सेहत के लिए? बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने। जब हम एक्सरसाइज करते हैं विद इन 10 मिनट्स, अगर आप सिंपल वॉक करते हो, क्योंकि हमें लगता है कि अगर जिम नहीं जाएंगे तो शायद एक्सरसाइज नहीं है, जब आप सिर्फ 10 मिनट चलते हो
ہماری باڈی میں انڈورفنز ریلیز ہوتے ہیں وچ ایکٹس ایز این اینٹی اسٹریس ہارمونس 10 منٹ کے اندر. اگر آپ کو غصہ آتا ہے اور بہت لڑائی کا ماحول ہے, اور جس کو بھی آتا ہے, اگر وہ صرف یہ سمجھ لے کہ میں ایک گلاس پانی پی لوں اور 10 منٹ گھوم کے آ جاؤں, اسے کچھ یاد نہیں رہے گا, وہ اینگر والا مومنٹ ختم ہو جائے گا. اتنی پاور ہے 10 منٹ کے واک میں. اچھا, آپ نے دبئی میں کئی برسوں سے آپ وہاں رہائش پذیر ہے اور وہیں کام کر رہی ہیں, تو اس وقت آپ ویکیشن میں ہیں سری نگر میں, تو جاننا چاہیں گے کہ وہاں جو مینٹل ہیلتھ آپ نے دیکھا اور کشمیر میں آپ جو دیکھ رہی ہیں, انتر کیا ہے؟ یہاں پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا ہے کوئی, اور وہاں پہ ہم لوگ کافی اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں ہر معاملے میں. ہم لوگ لوگوں کو بول رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین اسٹریس, انگزائٹی اینڈ ڈپریشن, تاکہ ہم اپروپریٹ ریفرل کر سکیں. یہاں ہر کسی چیز کو ایک ہی چیز نظریے سے دیکھا جا رہا ہے. اگر کسی کو اسٹریس ہے تو سائیکیٹرسٹ کے پاس, یہ نہیں کہ خود بھی کوشش کریں کہ ان چیزوں کو چینج کرنے کی. تو یہاں پہ اویئرنیس کی بہت کمی ہے جو پرسنل لیول پہ, کیونکہ جب آپ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہو, آپ کاؤنسلنگ والا پارٹ نہیں ہے یہاں پہ. اب تو کافی چیزیں ہونے لگی ہیں آرگنائزیشن لیول پہ, لیکن جب ریئلی کوئی اسٹریس میں ہوتا ہے, انگزائٹی میں, ڈپریشن میں ہوتا ہے, آپ اس کو ٹائم نہیں دے پاتے ہو. اور موسٹ امپورٹنٹلی فیملی انوالومنٹ بہت ضروری ہوتی ہے اس چیز سے. تو انشاءاللہ جیسے دھیرے دھیرے یہ چیزیں ہوں گی اور لوگ اس کو ایکسیپٹ کرنے لگیں گی, کافی بہتری ہو سکتی ہے. بٹ اوور آل اٹ از اباؤٹ ویژن, اٹ از اباؤٹ اویئرنیس, کافی فرق ہے. اچھا, حال ہی میں آپ نے ایک سیمینار میں بھی شرکت کی یہاں, تو کیا لگا آپ کو کہ کہاں ہے ہم مینٹل ہیلتھ میں کشمیر میں اس وقت؟ ڈس آرگنائزڈ ہے, سوری ٹو سے. ہمیں پراپر آرگنائزیشنس کی ضرورت ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اسکولز میں یہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ایڈ کرنا چاہیے. جتنے بھی ادارے ہیں ان کے لیے مینڈیٹری ہیں کہ ہم لوگ ان کو بھی ٹائم, وہ آرگنائزیشنس کو ڈھونڈے, وہ اسپیکرس کو ڈھونڈے کہ نہیں, آپ ہمارے امپلائیز کو ایک بار سیشن دو, آپ ان کو بات سمجھاؤ, اور ان کو ایٹ لیسٹ آپ اتنا سمجھا دو کہ واٹ از اسٹریس, واٹ از انگزائٹی اینڈ واٹ از ڈپریشن. اگر وہ سچ میں ڈپریشن کا شکار ہے, یہ ہمارے لیے اچھی بات نہیں ہے, کیونکہ جو ڈپریشن میں ہوتا ہے وہ کبھی سامنے نہیں آتا. اینڈ انفارچونیٹلی دے بہیو سو پازیٹیولی, تاکہ وہ خود ہی چلا جائے. ہم اس کو انکریج کرے گی, تم خود ہی ایک بار اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ, کیونکہ یہ ایسی چیز ہے اگر ہم نے دوا اسٹارٹ کر دی تو یہ بالکل علاج ہو سکتا ہے اس کا, اور اینڈ پرسن کین لیو اے نارمل لائف. اچھا, آپ نے ذکر کیا کہ اگر ہم اپنا جو زندگی کے آداب میں چینج لائے اور غذا میں اگر چینج لائے تو اس طرح کی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے, تو کیا کیا جائے تاکہ ڈاکٹر کے پاس جانا نہ پڑے؟ سب سے پہلی بات, اگر آپ بہت, جیسے میں نے کھانے کا, ریسٹ کا, اور یہ 3 چیزیں تو بہت امپورٹنٹ. اس کے علاوہ اگر آپ سچ میں بہت پریشان ہو اور کوئی بھی ریزن ہے, 10 منٹ سن لائٹ میں بیٹھ جاؤ. سن لائٹ کا بڑا پاور ہے. جیسے ہی ہم لوگ, جیسے انفارچونیٹلی کوئی پریشان ہوتا ہے تو کمرے میں بیٹھ کے پردے بند اور اندھیرا چاہیے, تو یہ ایک بڑی سچویشن ہوتی ہے, اور اس کو فیملی ممبرس کو ریکگنائز بھی کرنا چاہیے. تو کسی طریقے سے اس بندے کو باہر آپ 10 منٹ سن لائٹ میں بٹھا دو. ہوگا کیا کہ امیجیٹلی جو ہمارے برین میں ایک ہائپوتھیلمس گلینڈ ہوتا ہے, اس میں سن لائٹ 5-10 منٹ تک جب کنٹینیوسلی ٹرانسفر ہوتی ہے, اسے 2 ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں, میلیٹونن اور اینڈورفنس. اینڈورفنس آپ کا موڈ ایلیویٹ کر دے گا, اور جو میلیٹونن ہے آپ کی نیند بیٹر کر دے گا. اچھا, تو یہ بھی ضروری ہے. اور یہ سب چیزیں اگر ہم کرتے رہیں تو انشاءاللہ بیماری تک نہیں پہنچیں گے.